ये आमेर का किला है और ये पूरा वर्ल्ड हेरिटेज पॉइंट में आता है। यूनेस्को सीरीज में आ चुका है 2013 से वर्ल्ड हेरिटेज पॉइंट में। ये सबसे ज्यादा शूटिंग भी इसी किले में होती है। 500 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है इसमें, जैसे बेटा मूवी की, और बोल बच्चन, वीर, तलाश, भूल भुलैया, मुगले आजम, जोधा अकबर, महाराजा, खुदा गवाह, ऐसी कई फिल्में बन चुकी है इस किले में। এবার আমরা যাচ্ছি জয়পুরের আমের ফোর্টের দিকে। আগ্রার ফতেপুর সিক্রি না দেখলে যেমন আগ্রা দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তেমনি জয়পুরের বিলাসবহুল ফোর্ট আমের ফোর্ট বা আম্বের ফোর্ট না দেখলে রাজস্থান ঘোরা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ये आमेर का किला है और ये पूरा वर्ल्ड हेरिटेज पॉइंट में आता है। यूनेस्को सीरीज में आ चुका है 2013 से वर्ल्ड हेरिटेज पॉइंट में। ये सबसे ज्यादा शूटिंग भी इसी किले में होती है। 500 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है इसमें, जैसे बेटा मूवी की, और बोल बच्चन, वीर, तलाश, भूल भुलैया, मुगले आजम, जोधा अकबर, महाराजा, खुदा गवाह, ऐसी कई फिल्में बन चुकी है इस किले में। और इसमें देखने के लिए शीश शीश महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, गणेश पॉल, पिकॉक गेट, शीला देवी टेम्पल, ये 22 आइटम है इसमें देखने के लिए। सामने पहाड़ी पे आप दीवार देख रहे हो ना, ये दीवार पूरे राउंड पहाड़ी पे फैली हुई है अरावली हिल पे। जब महल के अंदर राजा रहते थे तो राजा के सिपाही इन दीवारों पे घूमा करते थे। महल की और राजा की सुरक्षा करते थे इन दीवारों पे बैठ के। वो सामने दीवार है और ये दीवार दुनिया की सबसे बड़ी वॉल में तीसरे नंबर पे आती है दीवार। थर्ड नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना वॉल है, दूसरे नंबर पे कुंभलगढ़ है, उदयपुर के पास में कुंभलगढ़, उसकी छत की। और ये 12 किलोमीटर की वॉल है ये जी। इसके ऊपर चढ़ने के 3 रास्ते हैं, एक एलिफेंट का है, एक पैदल का है, एक गाड़ी का है। एलिफेंट का जो रास्ता है वो दिन में 12 बजे बंद हो जाता है। एलिफेंट राइडिंग दिन के 12 बजे तक चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। फिर रास्ता रहता है पैदल का और एक गाड़ी का। तो ये वाला रास्ता जो है पैदल का, स्टेप का, ऊपर किले तक जाने के लिए। ये सामने पहाड़ी है, इसके पीछे से जो रास्ता है वो गाड़ी का है। और पूरा गांव आएगा, गांव देखते हुए अपन ऊपर किले के लिए चलेंगे। देखो वो सामने दीवार वो रही, ये दीवार पूरे राउंड 12 किलोमीटर की है। देखिए वो सामने लिखा हुआ भी है हाथी स्टैंड। यहाँ से एलिफेंट जाते हैं। एलिफेंट चलते हैं सिर्फ 12 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक एलिफेंट चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। আমরা আমের ফোর্টে পৌঁছে গেছি। ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে রাজকীয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত মণিমুক্তা সোনা রূপা খচিত রাজপুত রাজা মান সিংয়ের শীষমহলের অন্দর মহল। ইতিহাসে একমাত্র সাক্ষী মান সিংহের 12 জন রানীর একই ধরনের ডিজাইনের বিলাসবহুল ঘর। এই রাজপ্রাসাদ মুঘল আর্কিটেকচার ও রাজপুত আর্কিটেকচারের মিলিত সূক্ষ্ম কারুকার্য, যা ন্যাচারাল কালার দিয়ে অঙ্কিত ডিজাইন, তখনকার দিনের হামাম বা স্নানঘর, বাথটব, শিলাদেবী টেম্পল, দেওয়ানিয়াম, দেওয়ানি খাস প্রভৃতি। আমের দুর্গ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। আমের দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা অ্যালান সিং, যিনি মিনাদের চন্দ্রবংশের একজন শাসক ছিলেন 967 খ্রিস্টাব্দে।
গোলাপী শহর জয়পুরের প্রায় 11 কিলোমিটার উত্তরে আরাবল্লী পাহাড়ে ঘেরা এই আমের ফোর্ট পরবর্তীতে 16 শতকে কাচওয়াহা বংশের রাজপুত শাসক রাজা মান সিং প্রথম দ্বারা কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। মান সিং ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি, যিনি আকবরের নবরত্ন সভার মধ্যে একজন ছিলেন। লাল বেলে পাথর ও মার্বেলে গঠিত এই আমের ফোর্ট মাওতা লেকের জল আমের প্যালেসের প্রধান জলের উৎস ছিল। পরবর্তীতে সওয়াই জয় সিং দ্বিতীয় দ্বারা আমের ফোর্ট সম্প্রসারিত হয়। 1727 সালে কাচওয়াহা বংশ তাদের রাজধানী আমেরে স্থানান্তরিত করে এবং 1.5 কিলোমিটার লম্বা গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ জয়গড় দুর্গের সাথে আমের ফোর্টকে যুক্ত করেছে, যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের হাত থেকে রাজ পরিবারের লোকজনকে সুরক্ষার জন্য। আমের ফোর্টের ওয়াল বা দেওয়াল বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম প্রাচীর হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রথম চীনের গ্রেট ওয়াল, দ্বিতীয় রাজস্থানের কুম্ভলগড় ফোর্টের ওয়াল 36 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং তৃতীয় আমের ফোর্টের ওয়াল 12 কিলোমিটার দীর্ঘ বা প্রায় 7.5 মাইল। আমের ফোর্টের নিচে হলুদ বিল্ডিং, যা ভারমাল কন্যা যোধাবাইয়ের জন্মস্থান, যিনি আকবরের বেগম ছিলেন। যোধাবাইয়ের ছোটবেলাকার বেড়ে ওঠার স্থান। দেওয়ানি আমের পাশেই আছে 27 কাছারি। আলাদা আলাদা বিভাগের প্রধান কর্মচারীরা তাদের হিসেব নিকেশ করত এবং খাতাপত্র লিখত এবং রাজাকে দিত। আমরা যে গাইড নিয়েছি সেই গাইডের মুখেই আমের ফোর্টের ইতিহাস শুনুন। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं गाइड महावीर सिंह आपके साथ। अपना जो जयपुर सिटी देखने आए हुए, जयपुर अपना यहाँ से 11 किलोमीटर आगे है। ये महाभारत कालीन सिटी अमकेश्वर नगर, जिसको आज आमेर बोलते हैं। इधर सर्वप्रथम राजा कांकिल देव आए। राजा कांकिल देव रामचंद्र जी के वंश है और रामचंद्र जी के 2 संतान था, लव और कुश। तो कुश से जो वंश चला वो कुशवा कछवा वंश के राजपूत राजा हुए और उन्हीं लोगों ने इधर शासन किया और आज भी उनका जनरेशन है। तो सर्वप्रथम राजा कांकिल देव, जो बैक साइड में फोर्ट है जयगढ़ किला, 1036 में जयगढ़ किले का नींव रखा। 750 वर्ष में 27 राजाओं ने मिलकर उसको बनाया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बना। उन 27 राजाओं में 22वें शासक थे राजा भारमल। भारमल के लिए जानते होंगे जोधा के पिता। राजा भारमल ने जब अपनी बेटी जोधा का शादी अकबर से किया, उसी दौरान राजा मान सिंह जी अकबर के साथ आगरा गए। आगे चल के उसके प्रधान सेनापति बने और नवरत्न में से एक हुए। उसी मान सिंह ने 1599 के तहत ये प्लेस बनाया जिसको आप देखने के लिए आए। ये प्लेस मान सिंह का प्लेस है। इसके बाद 18 नवंबर 1727 को राजा सवाई जयसिंह जी ने, आमेर के ही राजा सवाई जयसिंह जी ने जयपुर की स्थापना की, जो हिंदुस्तान का पहला प्लान सिटी है। उसके बाद वो लोग जयपुर सिटी प्लेस चले गए। तो मेरा बताने का, राजाओं के 3 रेजिडेंसी प्लेस है, जयगढ़ फोर्ट, आमेर प्लेस और सिटी प्लेस। जयगढ़ और सिटी प्लेस आज भी राजाओं के पास है। ये अपना गवर्नमेंट के पास आ चुका है और गवर्नमेंट से भी यूनेस्को हेरिटेज प्लेस है। तो अपने राजस्थान की 2 चीजें देखने का, फोर्ट एंड टार्ट। तो अपन प्लेस जो विजिट कर रहे हैं, ये राजा मान सिंह का प्लेस है। इसके 2 इंटर गेट है। उगते सूरज के सामने सन डोर, बैक साइड मून डोर। तो ये सूर्यवंशी राजपूत राजा थे, वीआईपी डोर सूरज पोल को रखते थे, यानी राजा इधर से आएंगे, ग्रामीण जनता इधर से। दूसरा, ये राजाओं का पार्किंग प्लेस था और पार्क करने के लिए कहते हैं हाथी घोड़े। तो ये जो देख रहे हैं, जो मैम ग्लास लगे हुए सामने सो, तो इन पे पुराने टाइम पे घोड़े रखे जाते थे। और बैक साइड में जहाँ से टिकट लिया, ये बग्गी खानार, यहाँ पे रथ बग्गी वगैरह रखे जाते। एक चीज और देखने का, ये प्लेस पे पूरे कैपिटल पे एक बाउंड्री वाल नजर आ रहा है आपको। ये दुनिया का 3rd वाल है। फर्स्ट ग्रेट वाल ऑफ चाइना, दूसरा कोमलगढ़ फोर्ट उदयपुर और तीसरा अपने आमेर का सुरक्षा वाल। ये हिस्ट्री में 8 मील लिखा हुआ है, करीबन 12 किलोमीटर में। नीचे देखा इनका पार्किंग प्लेस, जैसे ऊपर आए तो इनका ऑडियंस प्लेस, दीवान आम जनता के साथ राजा लोगों का मीटिंग। तो यहाँ पे राजा लोग जनता के साथ बैठते थे। इधर ग्रामीण जनता, सामने राजा साहब बैठेंगे। और बैक साइड चलेंगे 27 कचहरी, तो 27 मिनिस्टर थे, वो लोग उधर बैठते थे।
और जैसे ही ग्रामीण जनता की कोई समस्या होगी वो राजा से बोलेंगे कि हमारे पानी का समस्या है, तो राजा वाटर मिनिस्टर को इधर बुलाएंगे, उनकी समस्या का सॉल्वेशन करेंगे। यानी ऐसा राजकाज चल रहा था। दूसरा चीज देखने का कि मुगल काल या राजपूत काल में पर्दा प्रथा काफी सुदृढ़ थी, लेडीज को अलाउ नहीं करते थे इधर। तो लेडीज के लिए आप सेकंड पार्ट में जो झरोके देख रहे हैं मैम, वहां से बैठ के लेडीज पूरा प्रोग्राम देख सकती थी, यहाँ से खड़े इंसान अंदर नहीं देख पाते थे। तो आप देख रहे हो उस पर टेपर ग्लास और टेपर जाली और ग्लास लगे हुए, तो ये पूरा प्लेस को लेडीज के लिए था उधर का अपार्टमेंट, लेडीज भी उधर बैठ सकते जी। यहाँ अपन आ सकते हैं, यानी ग्रामीण जनता यहाँ तक अलाउ था, लेकिन जैसे अपन अंदर चलेंगे तो दीवाने खास आएगा। इससे पहले देखिए ये गणेश पोल, ये भी विश्व प्रसिद्ध गेट है जो आप देख रहे हो, गणेश पोल। और इसका विश्व प्रसिद्धि का रीजन इसका ब्लॉक पेंटिंग, जो कलर देख रहे हैं मैम नेचुरल कलर है, जो फ्रूट और सब्जियों से लेके। दूसरा देखिए हिंदू मुस्लिम आर्ट, गेट का डिजाइन एक मस्जिद के अनुसार, लेकिन बीच में गणपति हिंदू आर्ट बना हुआ है। तो अपन अंदर चलेंगे, दीवाने खास आएगा। उससे पहले अपन आमिर ये इसका दीवाने आम देख रहे हैं मैम, तो अंदर दीवाने खास देखते हैं मैम। ये गणेश पोल, इसका बैक साइड का पेंट देख रहे हैं, ये नेचुरल कलर फ्रूट और सब्जियों से लिए गए। और जैसे अपन एंट्री करेंगे तो ये स्टोन और गोल्ड से लिया गया कलर, ये स्टोन डस्ट से बना हुआ जी, स्टोन और गोल्ड। सर इसको देखेंगे, ये राइस होता है, गंवार का, उड़द की दाल, मेथी, गुड़, ऐसी चीजों का प्लस्तर है, ये पेस्ट है। और ये जो अंदर देख रहे हैं ये मार्बल है, अंदर साइड में स्टोन, ये मार्बल है। तो सर आप लोगों ने देखा बैक साइड में दीवाने आम, जैसे अपने एंट्री की रहे तो ये दीवाने खास, इस गेट से और इस वाल से उस वाल के बीच का अपार्टमेंट दीवाने खास होता था। अगला अपार्टमेंट आएगा जनाना डोडी, यानी लेडीज अपार्टमेंट। मुगल लोग हरम बोलते हैं, हिंदू लोग जनाना डोडी। तो राजा मान सिंह के 12 रानियां, तो इसने 12 रानियों के 12 बेडरूम बनाए, जो आगे चल के देखेंगे। लेकिन फर्स्ट में दीवाने आम, सेकंड दीवाने खास। और ये जो आधुनिक रूप देख रहे हैं मैम दीवाने खास में, बेल्जियम ग्लास, मकराना मार्बल, गार्डन फाउंटेन, ये मान सिंह ने नहीं बनाया था, ये 3 पीढ़ी बाद मिर्जा राजा जयसिंह हुए। तो मान सिंह ने 12 रानियों के लिए 12 बेडरूम बनाए, जो आगे चल के देखेंगे। उसने अपनी 2 रानियों के लिए 2 बेडरूम बनाए, समर प्लेस और विंटर प्लेस, सर्दी का अलग और गर्मी का। एक ही प्लेस में 2 बेडरूम है। तो ये शीतकालीन बेडरूम था जो सर्दी में गर्म होता था। आप देख रहे हैं ऊपर बेल्जियम ग्लास है, नीचे मकराना मार्बल लगा हुआ है। तो जैसे कैंडल लैंप, ऑयल लैंप जलाए जाते थे, नीचे पश्मीनो कारपेट होते थे। तो जैसे शीशे से रिफ्लेक्स आएगा, प्लेस गर्म होगा। तो ये सर्दी में गर्म होता था। अंदर वाला जो प्लेस देखेंगे बैक साइड में, सुख मंदिर, वो गर्मी में ठंडा होता था। उसमें वाटर कूलर लगे हुए मार्बल के लिए, वो प्लेस को ठंडा करता था, ये प्लेस को गर्म करता था। हाँ जी, ये पूरा सेल्स बेल्जियम ग्लास और मकराना मार्बल से बना उस टाइप। और अपन थर्ड पार्ट जनाना डोडी लेडीज अपार्टमेंट के लिए चल रहे हैं सर। तो ये ऐसी टनल है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट और एक प्लेस से दूसरे प्लेस से अटैच करती है। तो इसमें अगर लंबा चलेंगे तो ऊपर जैकेट के लिए तक चल सकते हैं, बाकी अपन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो चल ही रहे हैं अभी। तो अगला अपार्टमेंट जनाना डोडी यानी मानसिंह महल रहेगा, जिसने राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाया। दीवाने आम सेकंड अपार्टमेंट, दीवाने खास, और थर्ड अपार्टमेंट जनाना डोडी लेडीज अपार्टमेंट। मुगल लोग हरम बोलते हैं, हिंदू लोग जनाना डोडी। इसमें राजा के अलावा कोई जेंट्स अलाउ नहीं, सर्वेंट सोल्जर सब लेडीज होते थे या फिर किन्नर होते थे। तो इसको मानसिंह ने बनाया, इस वजह से मानसिंह महल बोलेंगे। राजा मानसिंह जी के 12 रानियां थी और उन्होंने 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बनाए। इसमें देखने का रहेगा कि हर अपार्टमेंट में से एक सीढ़ी ऊपर जाता है, सीढ़ी कॉरिडोर में जाता है, कॉरिडोर राजा के बेडरूम में जाता है। ये ऊपर वाला राजा का बेडरूम, नीचे 12 रानियों के 12। तो इस वाल से इस वाल के पीछे एक रानी का अपार्टमेंट है। इस डोर से चलेंगे सेकंड का और अगले डोर से थर्ड का। तो एक साइड में 3, तो चारों दिशाओं में 3-3 है, 3 चौक 12। आप किसी में भी से जाइए, उसमें से एक सीढ़ी ऊपर जाता है, सीढ़ी उस कॉरिडोर में जाता है और कॉरिडोर राजा के बेडरूम में आता है। तो 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट, ऊपर राजा के एक अपार्टमेंट, ऐसे ये जनाना डोडी बना हुआ है। तो इसमें अपन एक अपार्टमेंट को विजिट करते हैं, सब सेम बने हुए हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये रानी के लिए बाथटब होता था। ये रानी का बाथटब, वो वाटर टैंक, सर्वेंट लोग ऊपर से पानी डालेंगे, कॉपर पाइप से पानी आता था। जैसे सिल्वर को कटेगा, बाथटब में पानी आएगा। एक साइड की दीवारें देखिए 1.5 फीट की दीवार है, लेकिन अंदर जैसे आए तो 4 फीट चौड़ी दीवारें आ गई। तो गौर से देखेंगे, ये 4 फीट नहीं है मैम, इधर से देखिए 1.5 फीट दीवार इधर है, 1.5 फीट इधर है, 1 फीट बीच में से खाली है। तो खाली क्यों रखा जाता है? जैसे थर्मस में गैप होता है, उसमें गर्म चाय गर्म ही रहती है, ठंडा पानी ठंडा ही, ऐसे प्लेस का टेम्परेचर सेट रखता है। दूसरा चीज इधर से देखने का रहेगा, आप आएंगे कि ये फर्स्ट में रानी का बेडरूम और वो गेस्ट रूम। तो इधर के दरवाजे बड़े लिए गए, रीजन यहाँ से राजा लोग इंटर होते थे, वो कभी झुकते नहीं थे, यानी राजाओं के जाने के दरवाजे बड़े। और इसी अपार्टमेंट में पीछे के दरवाजे छोटे हैं, क्यों? पीछे सर्वेंट एरिया, दासी अंदर आएगी तो झुक के आएगी। आइए थोड़ा अंदर से भी देख लेते हैं अपन लोग, आइए इधर से देखें। तो फर्स्ट में ये बेडरूम, सेकेंड गेस्ट रूम और थर्ड अपार्टमेंट यानी इसका सर्वेंट रूम।
ये सर्वेंट रूम। तो फर्स्ट में बेडरूम, गेस्ट रूम और ये सर्वेंट रूम। मैम हर रानी की दासी उसके मायके पीर पक्ष से आती थी, सर्वेंट यहाँ से नहीं मिलती थी उनको, उनके पीर से आती थी उनके साथ में मायके से। तो ये सर्वेंट के लिए। और इधर से देखेंगे बैक साइड में, ये इस अपार्टमेंट का टॉयलेट बाथरूम और वो इसका रसोई घर किचन। ये जो देख रहे हैं हम, ये मसाला वगैरह तैयार करने के लिए, मिक्सी वगैरह ना था, ग्रेडिंग करने के लिए। तो हाँ, तो ऐसे ये एक रानी का अपार्टमेंट है। बेडरूम, गेस्ट रूम, इधर टॉयलेट बाथरूम, इधर किचन एरिया, ये इधर ऐसे 12 अपार्टमेंट है। आप देख रहे हैं कि हर अपार्टमेंट में से एक सीढ़ी है ऐसा, और वो सीढ़ी हर राजा यानी कि राजा के बेडरूम से अटैच है। आप किसी भी अपार्टमेंट में जाइए, उसमें से एक सीढ़ी ऊपर जाता है, सीढ़ी कॉरिडोर में जाता है, कॉरिडोर राजा के बेडरूम में जाता है। आइए इधर से आइए। आपने देखा फर्स्ट डोर में, फर्स्ट डोर पे ये फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट, ये सेकंड का, सेकंड डोर से ये थर्ड का। तो एक साइड में 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, 3 चौक 12। आप किसी भी अपार्टमेंट में जाइए, उसमें से एक सीढ़ी ऊपर जाता है, सीढ़ी उस कॉरिडोर में जाता है, और वो कॉरिडोर घूम के सर सामने राजा के बेडरूम में आ जाता है। तो हर रानी का अपार्टमेंट राजा के बेडरूम से अटैच है। कोई भी रानी ऊपर नहीं जा सकती थी, राजा ही किसी पार्ट में आ सकते थे, ऐसे रूल्स थे। ये जो छतरियां देख रहे हैं ऊपर की साइड में, इनके लेडीज सोल्जर्स या किनर सोल्जर्स इस पे खड़े रहते थे सर। मैंने बताया ना, इसमें राजा के अलावा कोई जेंट्स अलाउ नहीं। और आपने एक चीज और देखा, राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या होती थी पुराने टाइम से। तो जो पहाड़ों में पानी का स्टोरेज होता था बरसात के टाइम पे, वो झरने के रूप में निकल के आता है, और वही झरनों का पानी अपने नीचे यहाँ स्टोरेज है। ये वाटर टैंक बने हुए, बताया जाता है यहाँ पे ऐसे 5 वाटर टैंक है, हर अपार्टमेंट में एक वाटर टैंक है। नीचे तो वाटर टैंक, हाँ, तो अपने नीचे यह वाटर टैंक है, तो हर अपार्टमेंट में एक वाटर टैंक है। और 5000 लोग 5 वर्ष तक पानी पी से, कितना पानी स्टोरेज होता है इसमें। अपन बैक साइड से निकलेंगे तो इसके डोर पे लिखा मिलेगा कि दीवाने आम का टाका, दीवाने खास का टाका। तो ये टाके क्या थे, वाटर टैंक होते थे उस टाइम के। दूसरा, पानी के साथ में खजाना भी स्टोरेज करते थे एसी के अंदर, छुपा के रखते थे लोग। तो ऐसे ये दीवाने आम, दीवाने खास और जनाना डोडी, ये राजा का रेजिडेंसी प्लेस था सर। दूसरा, बैक साइड देखिए, ये रानियों के किट्टी पार्टी मनोरंजन के लिए। उस टाइम के मनोरंजन के कुछ ज्यादा साधन नहीं होते थे, पोपट गेम, थिएटर वगैरह होते थे, या चौपट पास उस टाइम के कुछ गेम होते थे। साथ में रानियों के पास राजनीतिक पावर भी था। आपने देखा, यहाँ के राजा तो मुगलों के मंत्री या सेनापति रहे। अगर राज्य में बड़ी समस्या आ गई तो उसका निवारण कौन करे। आप देखिए, अफगान विजय के लिए मान सिंह गए तो 5 वर्ष कुछ महीने में आए, तो 5 वर्ष में तो आज अपना गवर्नमेंट ही चेंज हो जाता है। तो राज्य में अगर कोई बड़ी समस्या आ गई तो सेंटर में बड़ी रानी बैठेगी, साइडों में सहरानियां बैठेगी, और एक मुद्दे पे ज्यादा रानियां सहमत होगी, वो आदेश बाहर 27 कचहरी में भिजवा दिया जाएगा। तो वहां आप देखेंगे कि 27 मिनिस्टर होते थे, तो वो लोग उसको, जो विभागीय मंत्रियों का उस समस्या का सॉल्वेशन करेगा, और उस राज्य में उसका निवारण जो भी होगा, उसका मतलब जो कानून बनेगा उसको राज्य में लागू करवाएगा। तो ऐसे यहाँ से रानी के पास राजनीतिक पावर भी था। আমের প্যালেস 4টে প্রধান ভাগে বিভক্ত: দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, শীষ মহল এবং সুখ মন্দির। দেওয়ানি আম হলো আম জনতার সমস্যা মেটানোর জন্য সভা হতো। রাজা সিংহাসনে বসে জনতার সমস্যা শুনে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করতেন। দেওয়ানি খাস হলো রাজার সঙ্গে প্রধান প্রধান মন্ত্রী বা মুখ্য অতিথিদের নিয়ে সভা হতো। দেওয়ানি খাসের কাছে শীষ মহল, যা রাজা জয় সিং দ্বিতীয় বানিয়েছিলেন। বেলজিয়াম থেকে কাচ এনে শীষ মহল তৈরি করেন। মূলত শীতকালীন আবাসের জন্য এই শীষ মহল সূর্যের কিরণ কাচের মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হয়ে ঘরকে গরম রাখত। এক কোণে একটা মশাল বা মোমবাতির আলো কাচের মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হয়ে পুরো ঘরকে একটা মায়াবী স্নিগ্ধ মোহময়ী রূপে পরিণত করত। শীষমহলে সোনা রূপো দিয়ে কারুকার্য সত্যি দেখবার মতো। রাজা মান সিং 12 রানীর প্রত্যেকের জন্য 12টা মহল বানিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা মান সিংয়ের
ওপরের রাজপ্রাসাদের সঙ্গে প্রত্যেক রানীর ঘরে রাজা যাওয়ার জন্য সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যাতে রাজা যে কোনো রানীর ঘরেই যাক না কেন অন্য রানীরা টের পাবে না। 12 জন রানীদের কিন্তু রাজার ঘরে যাবার অধিকার ছিল না। পরবর্তীতে রাজা জয় সিং তার রানীর জন্য 3টে রানীর ঘর মিলিয়ে একটা বিশাল ঘর তৈরি করান। রাজা প্রবেশ করতেন হাতির পিঠে চড়ে সুরজ পোল দিয়ে। পোল অর্থ গেট। সূর্যের প্রথম আলো এখানে এসে পড়ত, তাই সুরজ পোল নাম হয়েছে। অন্যান্য প্রজারা পশ্চিমে চাঁদ পোল দিয়ে যাতায়াত করত। চাঁদ পোল অর্থাৎ মুন পোলও বলে। গণেশ পোলের প্রধান রাস্তা, যা ওপরের মহলে যাওয়া যায়। গণেশ পোলের ওপরে গণেশের মূর্তি আছে এবং এই গণেশ পোলের দেওয়ালের চারিদিকে ফ্রেস্কো পেন্টিং এবং ন্যাচারাল কালার আজও নতুনের মতো অক্ষত আছে। প্রায় 400-450 বছর আগে তৈরি করা, এখনো রং একদম নষ্ট হয়নি। কাশ্মীরের কেশর এনে এখানে ফলাবার জন্য রাজা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এখানে গরমের জন্য কেশর ফলাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিশাল সামনের গ্রাউন্ড হলো জালেব চক। এটা পার্সিয়ান ওয়ার্ড, যার অর্থ হলো প্যারেড গ্রাউন্ড। এখানে সেনাদের মহড়া চলতো এবং ঘোড়াদের পাশে আস্তাবলও আছে। দেওয়ালি এবং হোলিতেও উৎসব হতো। গণেশ পোলের ওপরের তলায় সুহাগ মন্দিরের ছোট ফাঁকা জায়গা দিয়ে রানীরা যুদ্ধ জয়ের পর রাজা প্রবেশ করলে পুষ্প ছিটিয়ে রাজাকে বরণ করত। জালি দিয়ে নিচের কোনো উৎসব হলে রানীরা দেখত, কারণ রানীদের নিচে নামার অধিকার ছিল না। রাজা মান সিং 1604 সালে যশোরের, বর্তমানে যশোর বাংলাদেশে অবস্থিত, যশোরের রাজাকে পরাজিত করে শিলা দেবীকে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করে। আমের ফোর্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমের ফোর্টের বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদের ছবি সম্পূর্ণরূপে ক্যাপচার করা সম্ভব নয়। এর সৌন্দর্যের ডালি সরাসরি অনুভব করতে হবে। তাই আপনারা রাজস্থানের জয়পুর ঘুরতে এলে অতি অবশ্যই আমের ফোর্টটা দেখে নেবেন। ফিরে যাবার পথে পড়বে জয়পুরের বিখ্যাত লেদার শপ এবং হাওয়া মহল। এবারে সময় অভাবে ঠিক টাইমে আমের ফোর্টে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি বলেই হাতির পিঠে দুর্গ পরিদর্শন করা হলো না, কারণ দুপুর 12টার মধ্যে প্রবেশ করলেই হাতির পিঠে চড়তে পারবে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক ও কমেন্টস করবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিও। পরবর্তী পর্বে দেখুন রাতের ঝলমলে পিঙ্ক সিটি এবং বিখ্যাত লেদার শপ।